Thank God for the time the Lord gave us to worship Him. खुदा की इबादत करने के लिए जो वक्त खुदा ने हमें बख्शा है, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। For the people of the world, today is a holiday. दुनिया के लोगों के लिए तो आज का दिन एक हॉलिडे है, But for us as God's children, it is a holy day. लेकिन खुदा के लोग बनने के नाते हमको ये होली डे है, पाक दिन है। And more than that, today is a day of worship and adoration. और उससे भी ज्यादा आज का दिन खुदा की हमदो सना गाने का दिन है और उसकी सिताइश और हमद गाने का दिन है। All over the world, दुनिया Lord's children are worshiping today. दुनिया तमाम खुदा के बच्चे खुदा की इबादत आज कर रहे हैं। So it's called as a worldwide worship day. इसीलिए आज के दिन को कहते हैं तमाम दुनिया की इबादत का दिन। So we as a small and little flock here in Yehovah Shammah, we are able to join this great company of worshippers. और तमाम दुनिया में जितने भी आबिद लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, उन सबों के साथ हम भी आज शाम को इकट्ठे होके यहोवा शम्मा में छोटा ग्रोह बनके हम भी इकट्ठा होके इबादत कर रहे हैं। Surely the Lord is pleased with our worship. मैं मानता हूं कि खुदावन जरूर हमारी इबादत को लेकर बहुत खुश हुए होंगे। And the good thing here in Yehovah Shammah is और यहोवा शम्मा में खुशी की बात यह है, all of us are able to worship हम the Lord. सब के सब इबादत करने का मौका पाते हैं। Not only those who are here, यहाँ रहने वाले ही नहीं, but those who are online, they are also able to join us and worship. और ये ऑनलाइन में जो शामिल हैं वो लोग भी इबादत में शामिल हो सकते हैं। And some, they cannot, those who are on YouTube, they cannot worship audibly, but we give time that so that they can silently worship the Lord. लेकिन जो YouTube में हैं, Facebook में हैं, ये सोशल मीडियाज में जो भी हमसे शामिल होते हैं, उन लोगों की आवाज़ हम सुन नहीं सकते हैं, हमारे साथ वो जुड़कर इबादत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो वक्त देते हैं ताकि वो लोग भी खामोशी में अपने दिलों में खुदा की इबादत कर पाएं। Now we are going to take part in the Lord's table. अब हम खुदा की इस मेज में हाथ डालने वाले हैं। Before we do that, ऐसा करने से पहले and after that, before we get back to our homes, और shall we look into the Word of God, और हमारे घरों को भी जाने से पहले चले हम खुदा के कलाम में से चंद बातें देखें, so that the Word of God may prepare us to take part in the table, ताकि खुदा के कलाम को मुताला करके हम इस मेज में हाथ डाल पाएं, and also we will receive whatever the Lord wants to sustain us with throughout this week. और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले पूरे हफ्ते में हमारी जिंदगियों में हमें बरकरार रखने के लिए खुदावंद जो कुछ हमें देने वाले हैं वो भी हम पाएंगे। Now shall we turn to the book of Genesis and chapter 24. अब हम देखेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 14, and we will read a few verses in this chapter. 24 और चंद आयतें हम इसमें से पढ़ेंगे। Genesis chapter 24. पैदाइश की किताब 24वां बाब verse 17. और आयत नंबर 17। 17. We will all read this verse together. उत्पत्ति की किताब ये बातें ये आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। And the servant ran to meet her and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. Now verses 19 and 20. अब 19वीं और 20वीं आयतें हम देखेंगे। All together again. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also until they have done drinking. And she hasted and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels. In the same chapter again, verses 28 and 29. और इसी बाब के 29, 28 और 29वीं आयतें Again all together. सब मिलकर। Kindly read loudly. जरा जोर से आवाज उठाकर पढ़ें। Yes. And the damsel ran and told them of her mother's house these things. And Rebekah had a brother, and his name was Laban. And Laban ran out unto the man unto the well. Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे आसमानी प्यारे बाप, we thank and praise you once again for the great honor and privilege given to us to join the worldwide worship that is going on today. और एक बार दुनिया तमाम में जो आपकी इबादत हो रही है, आपके बच्चों के साथ, तमाम दुनिया के बच्चों के साथ मिलकर इबादत करने का मौका हमें भी देने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। It is a day for thy redeemed ones to
praise and worship you. खुदावंद आज का दिन है आपसे छुड़ाए गए और मखलसी पाए हुए लोगों का दिन है जो आपकी इबादत करते हैं। And we in Jehovah Shammah, we could also join this great worship and praises which are ascending to thy throne during the course of this day. और आज के दिन तमाम आपके तख्त तक जो इबादतें पहुंचती आई हैं, उनमें हमारी भी यहोवा शम्मा की भी इबादत शामिल करने के लिए हमें भी आपने इकट्ठा किया है। शुक्र अदा करते हैं। We believe, Lord, thou was heard and art pleased and accepted our worship. आपने हमारी इबादत सुनी है और खुश हुए हैं और मकबूल ठहराए हैं करके आपका शुक्र अदा करते हैं। And now we thank you, Lord, for the table you have placed in our midst. और अभी खुदावंद हमारे दरमियान जो मेज आपने रखी है, इस मेज को लेकर शुक्र अदा करते हैं। And the emblems on the table, the bread and the cup, remind us of your great love and your sacrifice. और जो अलामात जो निशान यहाँ पे लगे हुए हैं, रखे गए हैं, खुदावंद का बदन और उनके खून का वो निशाने जो हैं, उनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। That is why, Lord, it is a table of remembrance for us. इसीलिए खुदावंद ये मेज जो है, ये हमारे लिए यादगारी की मेज है। It reminds us of the death of our beloved Savior and also his resurrection. ये मेज जो है हमारे प्यारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशुआ की मौत और उनके मुर्दों में से जी उठने की बातों को हमें याद दिलाती है। And also it is a table of examination, इतना ही नहीं, giving us a privilege week after week to examine ourselves and set things right. इतना ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को आजमा कर परखने का मौका देने वाली मेज है। और हर हफ्ते हमें ये मेज वो मौका देती है कि हमारी जिंदगियों को परख कर सुधारें। And also it is a table of anticipation, looking forward for the return of our blessed Savior. इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदावंद यीशुआ फिर से आने वाले हैं और उनकी राह तकते हुए मुंतजिर हमें ठहराने वाली मेज है। We therefore beseech you, Lord, that thou will prepare us through your word to take part worthily in the table. इसीलिए आसमानी बाप हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मेज में हमारे हाथ पाक रहें और पाकीज़गी से हम इस मेज में हाथ डाल पाएं। And we have to return and live in this world for the remaining 6 days. और बाकी 7 दिन, आने वाले 7 दिनों में इस दुनिया में हमें जीना है। And we need sustenance. और इसलिए इस वास्ते हमें ग़िज़ा की ज़रूरत We है। need spiritual food to strengthen us spiritually. रूहानी खुराक की ज़रूरत हमें है ताकि हम रूहानी तरीके से मजबूत बन पाएं। Grant, O Lord, such a word from thy throne. आपके तख्त से खुदावंद आज शाम को हमारे लिए इस तरह का कलाम आप बख्शें। Bless and break these few words that we read together and feed us. जो कलाम आप देने वाले हैं, आपकी रोटी जो है उसे तोड़कर हमें इस तरह का कलाम हमें बख्शें, So that none may go away empty from thy living presence. ताकि आपकी जिंदा मौजूदगी से कोई भी खाली वापस ना जा पाए। Lord, bless our time and make it profitable. और हमारा वक्त पर आपकी बरकत चाहते हैं और इसे हम सबों के लिए मुबारक बनाएं। Claim thy grace, thy help and thy anointing for both of us. आपकी रहमत और आपकी मदद और आपका रूह हम सबों पर, खास करके हम दोनों पर हम मांगते हैं। Hide us completely behind the cross. सलीब के पीछे हमें पूरे तरीके से ढक कर रखें। For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. क्योंकि ये बातें, ये दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। In these verses that we read, इन बातों में, इन आयतों में जो हमने पढ़ी है, there is one small word which is coming again and again. यहाँ पे एक छोटी सी बात है, लफ्ज है जो बार बार आता है। It's a simple word. ये बहुत छोटा सा लफ्ज है। Have you noticed that? क्या बात है वो? Can someone tell me? क्या कोई बता सकेंगे? In English, it is in 3 letters. अंग्रेजी में 3 हर्फ का लफ्ज है। Run, very good. हाँ, दौड़। So in all these verses that we read, तो जो आयतें हमने पढ़ी हैं, इन सबों we में read about this word run. दौड़ करके हम देखते हैं। This is what we are doing spiritually. रूहानी तरीके से हम सब यही कर रहे हैं। Our spiritual life is compared to so many things. हमारी रूहानी जिंदगी को कलाम में बहुत सारी बातों से ताल्लुक रख के बताया गया है। Our life is compared to a walk. हमारी रूहानी जिंदगी को
चाल चलन के तौर पर बताया गया Our है spiritual life is compared to a fight that we fight. और हमारी रूहानी जिंदगी को जो हम एक लड़ाई लड़ते हैं उस लड़ाई के बारे में लड़ाई जैसा बताया गया है Also, our spiritual life is compared to a run. और हमारी रूहानी जिंदगी को दौड़ के बारे में भी तरीके से भी बताया गया And है that is what Apostle Paul tells about himself. और इसी तरीके से पौलुस रसूल भी अपने बारे में बताते हैं When he came to the end of his course or life upon this earth, जब अपनी जिंदगी के अंत तक इस दुनिया में अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक पहुंच we know गए what he said in 2 Timothy and chapter 4. तो दूसरी तिमोती की किताब बाब नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा हमें पता है And in verse 7 very clearly he says और आयत नंबर 7 में वहां पे वो बहुत साफ तरीके से that बताते the हैं time of his departure has come. वो कहते हैं कि मेरे गुजर जाने का वक्त नजदीक आ चुका है And then in verse 6 he says that. और आयत नंबर 4 में वो कहता है And in verse 7 और आयत नंबर 7 में he says, I fought a good fight, I have finished my course, or I have finished running. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैंने दौड़ को खत्म कर लिया In Urdu, daud, straight away the word is mentioned. हाँ, isn't उर्दू it? में ऐसा ही आ गया दौड़ को खत्म कर So he लिया has finished his run. तो वो कहते हैं कि मेरे दौड़ को मैं खत्म कर लिया How nicely he's saying that. कितने अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं ना? But how did he run? लेकिन किस तरीके से उन्होंने दौड़ा He says about his run in the book of Philippians and chapter 2. अपने दौड़ के बारे में वो फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 में कहते हैं Philippians chapter 2, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 verse 16, आयत नंबर 16 and the last part of that verse. और इसके आखिरी में Philippians chapter 2 and verse 16, last part. फिलिपियों की किताब 2 की 16 और आखिर में I have not run in vain, neither labored in vain. ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई ना मेरी मेहनत अकारत गई Notice that word befaida. अब वो लफ्ज बेफायदा जो है उस पर गौर करें He also was running this race. वो भी इस दौड़ में शामिल है And when he comes to the end of his life upon this earth, इस दुनिया में इस जमीन पर अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक आने के बाद what is he saying here? वो यहाँ पे क्या कहते He हैं has not run in vain. वो कहते हैं कि मैंने मेरी दौड़ धूप बेफायदा से नहीं की We are all running. हम सब के सब तो दौड़ रहे हैं Every one of us is running the spiritual race. हम सब के सब इस रूहानी दौड़ में शामिल हैं But the question is, लेकिन सवाल ये है how are we running this इस race? दौड़ में हम किस तरह दौड़ रहे हैं We not only have to complete this or reach the target or the goal, हमको क्या करना है हमारी मंजिल जो है उस मंजिल तक तो हमें जाना है बल्कि इतना ही नहीं but also we must so run that we do not run in vain. और इस तरीके से भी रनना है कि हमारी ये दौड़ जो है मेहनत जो है वो अकारत ना हो जाए And writing to the believers in Corinth, he says, और कुरिन्थियों के लिखते हुए पौलुस रसूल फरमाते हैं he speaks about the spiritual run. और वहां पे रूहानी दौड़ के बारे में वो कहते हैं So run that he may obtain. इस तरीके से दौड़ना कि आपको रिवार्ड मिले So he says, run in order that you may be rewarded. हाँ वो ऐसा कहते हैं कि इस तरीके से आपको दौड़ना कि आपको अज्र मिले This is the desire of this great man of God. ये है खुदा का बंदा पौलुस रसूल की ख्वाहिश See, he was careful about his run. वो अपनी दौड़ को लेकर बहुत एहतियात से रहते हैं And that is why in 1 Corinthians chapter 9 and verse 27 he says, इसीलिए पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर चैप्टर 9 chapter 9 and बाब verse नंबर 27, 9 और आयत 25 में वो कहते हैं he's saying this word, I keep my body under subjection. वहां पे वो कहते हैं कि मैं अपने बदन को मैं काबू में रखता हूँ Why? क्यों Yeah, we know about the athletes who run the race. हम जानते हैं ना जो भी एथलीट्स होते हैं दौड़ धूप करने वाले Who are those who run this race? वो लोग दौड़ते हैं लेकिन वो लोग कौन हैं Are they pailwans? क्या वो लोग पहलवान होते हैं Huh? They are skinny bony. कैसे रहते हैं बहुत पतले रहते हैं Oh, very minimal weight they maintain. वो लोग अपने अपने वजन को बहुत घटा के हाँ। जितनी जरूरी है उतनी ही रखते हैं Only then they can run the race. तभी वो लोग दौड़ सकते हैं Not only run the race, but also win the race. दौड़ना ही नहीं बल्कि दौड़ को जीतना भी है So our object must be, our aim must be to run well and to finish the race
and receive the reward. तो हमारा मकसद और मंजिल ये होना चाहिए कि हम दौड़ को पूरा तो करेंगे, लेकिन हमें जो इनाम है वो भी मिलना है। Otherwise, we are going to be running in vain. अगर इनाम पा नहीं पाएंगे दौड़ के अंत में, तो हम बेफायदा से दौड़ रहे हैं। Such vain run will not get us any reward. और ये बेफायदा का दौड़ जो है वो हमें कुछ इनाम दे नहीं सकता। So our aim and purpose must be to run well, not to run in vain, so that we get a reward. तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इस तरीके से दौड़ें कि हमें इनाम भी मिले। Now the question is, अब सवाल ये है how not to run in vain बेफायदा का दौड़ किस तरह ना दौड़ें, and how to run well, और किस तरह हम अच्छे से दौड़ पाएं, and how to receive our reward. और हमारा इनाम जो है वो किस तरह हम पाएं। That is why with this aim we read these few verses from Genesis and chapter 24. और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने पैदाइश की किताब मतलब उत्पत्ति की किताब बाब नंबर 24 से हमने ये बातें पढ़ी हैं। Now the scripture tells us about many people who ran. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत सारे लोगों के बारे में जिक्र करता है जिन्होंने दौड़ा। How they ran. वो लोग कैसे दौड़े। We can learn some very important, precious lessons from the way they ran. उन लोगों की जिंदगियों को देखकर, उनका दौड़ जो है, उनके दौड़ को भी देखकर हम बहुत अच्छे से सबक सीख सकते हैं। In the portions of the verses that we read this evening, आज शाम को जिन आयतों को हमने पढ़ी है, we read about 3 people. उनमें हम 3 लोगों के बारे में जिक्र किया गया देखते हैं। All the 3 of them they ran. वो तीनों के 3 दौड़ने लगे। We see how they ran. वो लोग कैसे दौड़े हम देखते हैं। It is of course an earthly run. ये तो इस दुनिया में जो दौड़ होता है उस तरह का दौड़ है। But these runs they show unto us spiritual significance. ये तो दुनियावी दौड़ है, लेकिन इनमें रूहानी मतलब हम निकाल सकते हैं। Or they are runs of spiritual significance. मतलब उनके दौड़ जो हैं वो सब के सब रूहानी मतलब रखते हैं। So this evening let us see about these 3 people. और इसलिए आज शाम को हम 3 लोगों के बारे में देखेंगे। First of all, पहली we बात read about Eliezer. एलियाजर के बारे में हम देखते हैं। This Eliezer was a servant of Abraham. ये एलियाजर कौन है? ये अब्राहम का खादिम है। And if you read the first few verses in this chapter, अगर इस बाब के पहली चंद आयतें अगर आप देखेंगे, we read how Abraham desired a bride for his son Isaac. यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए करके उसने पूछा था। And he gave some specific instructions to his servant Eliezer. और अपने खादिम एलियाजर जो है उसको कुछ खास बातें उसने कही थी। And in fact he made him to swear to him also in verse 3. और आयत नंबर 3 में हम देखते हैं कि अब्राहम ने एलियाजर से वादा भी लिया था। He says, and I will make thee swear by the Lord the God of heaven. और वो कहता है कि मैं तुझसे यहोवा की जो जमीन और आसमान का खुदा है कसम लूं। And then after swearing to Abraham, इस तरह अब्राहम के सामने कसम खाने के you बाद know how Eliezer set out to find and get a bride for Isaac. एलियाजर किस तरह आगे चलता है ताकि अब इसहाक के लिए एक दुल्हन को ढूंढ कर लाए। And Eliezer was also a godly man. और हम देखते हैं कि एलियाजर भी एक मर्द खुदा है। He was a man of prayer. वो दुआ करने वाला इंसान है। So when he came to this place Haran, तो वो हारान की जगह पे जब पहुंचता है, and there he started praying to the Lord. और वहां आकर वो खुदा की दुआ करता है। You know about that prayer? और उस दुआ के बारे में हम तो पता He है। wanted to find the bride according to God's will. खुदा की मर्जी के मुताबिक वो एक दुल्हन को वो ढूंढ कर निकालना चाहता था। Not his will or his desire. अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी चाहत के मुताबिक It नहीं, should not be his choice. अपनी मतलब उसका चॉइस जो है वो नहीं करना चाहता, Because he always bore in his mind that this is for his master's son. क्योंकि उसने हमेशा अपने मन में जहन में ये बात रखी थी कि वो दुल्हन जो है वो अपने आका के बेटे के लिए है। It is
for is the chota master. हाँ, वो आका का बेटा क्या होता है? हाँ। छोटा मास्टर होता है। So therefore he has to be very careful. छोटा आका होता है, इसीलिए बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा। But Eliezer is only a servant. लेकिन फिर भी ये तो एक खादिम ही है। So he depended on the Lord. इसीलिए उसने क्या किया? यहोवा पर तकिया किया। He sought the Lord's help. खुदा की मदद मांगी। And also he sought God's will. और इतना ही नहीं बल्कि खुदा की मदद और उसकी मर्जी पूरा करना चाहा। This is what we must also be determined. हमें भी इसी बात पर डटे रहना चाहिए। Whatever we do हम जो भी करेंगे in our individual lives हमारी इनफिरादी जिंदगियों में or in our families या हमारे घरानों में or even corporately as a church, या पूरा एकलीसिया बनकर मिलकर इज्तिमाई तरीके से we must seek God's will. खुदा की मर्जी को हमें ढूंढना We है, must find God's will. खुदा की मर्जी को पहचानना है And we must also do the Lord's will. और खुदा की मर्जी को ही पूरा करना है। We must seek God's will, खुदा की मर्जी को ढूंढना, find God's will, खुदा की मर्जी को पहचानना and do God's will. और खुदा की मर्जी करना। And that is what Eliezer was doing here. यहाँ पे एलियाजर ठीक वैसा ही करता है। And that is why he is praying to the Lord for his help. इसीलिए एलियाजर खुदा से दुहाई लगाता है कि खुदा उसी मदद करे। And we read about that prayer from verse 12 onwards. और 12वीं आयत से लेकर हम उस दुआ को हम देखते We हैं are not going into the details of this prayer. और इस दुआ के तफसीलात को हम देखने वाले नहीं हैं। In this prayer, he's putting a condition. यहाँ पे इस दुआ में खुदा के सामने वो एक शर्त रखता And है। what is that condition? और वो शर्त क्या है? The damsel who comes with a pitcher of वो water, कहता है कि वो लड़की जो मेरे सामने आएगी and when I ask her for water, और कंधे घड़े के साथ आएगी और जब मैं उसे पानी मांगूंगा she must be willing to give water for him and also the camels. तो उसको क्या करना चाहिए होता है? उसको ऐसा करना होता है कि मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊंटे जो हैं उन सबों को भी पानी पिलाना होता है। That's what we read in verse 14. और 14वीं आयत में हम वही पढ़ते हैं। In the middle of the verse we read, आयत के बीच में, and she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. और वो कहे ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। How specific he is. कितना खास करके वो खुदा से ये बातें कह रहा है। देखिए Why? क्यों? Because this Eliezer also imbibed God the faith that Abraham had. क्योंकि एलियाजर की जिंदगी में भी उसके अंदर भी उसका आका अब्राहम में जो ईमान है उसको इसने भी अपनाया, अपने अंदर ले लिया। What is the title given to Abraham? अब्राहम के बारे में जो लकब होता है, उन्वान होता है, वो क्या है? He's a man of faith. वो मर्दे ईमान है। And you can call him as a father of faith. और ईमान का बाप भी उसे कह सकते हैं। As Eliezer was working for and being with Abraham, और जैसे ही एलियाजर अब्राहम के साथ रहते हुए उसके साथ काम में शामिल होते आया, he learned, observed the life of faith in his master. अपने आका अब्राहम की जिंदगी में जो ईमान के साथ वो जीता था उसका ईमान को वो सीख लिया। He saw that he was a man of prayer. उसने देखा कि अब्राहम दुआ करने वाला शख्स है। And so he also became a man of prayer and man of faith. और इस तरीके से वो भी दुआ में शामिल होने वाला इंसान हो गया और ईमान से भरा हुआ मर्द हो गया। This is what we have to learn, dearly beloved. अजीजों, हमें भी इन बातों पर गौर करके सीखना है। When we are men and women of prayer, जब हम दुआ करने वाले और दुआ करने वाले मर्द या औरत होंगे, when we exercise faith and lead a life of faith, जब हम ईमान के साथ जिएंगे और ईमान की जिंदगी बिताना शुरू करेंगे, it will have an impact on others who are with us. जरूर ही हमारे साथ जो भी लोग शामिल होंगे, इकट्ठे रहेंगे, उन पर भी ये असर दिखाने लगेगा। For example, मसलन we don't have to refer to that portion. सारी बातें कलाम में खोले नहीं, We see in Acts chapter 10, मसलन अगर हम प्रेरितों के काम या आमाल की किताब बाब नंबर 10 we read about a देखेंगे, man called Cornelius. वहां पे कोर्नेलियस करके एक इंसान को हम देखते And हैं। the word of God says, वहां पे खुदा का कलाम कहता है he was a devout वो man. बहुत दीनदार इंसान था। And later on, if you read in the same और chapter, अगर उसी बाब में अगर आप नीचे आएंगे, we read about one of his servants वहां पे उसके
एक खादिम के बारे में पढ़ेंगे or about his soldiers, या उसके जवानों के बारे में what do पढ़ेंगे, we read about them? उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? They were also devout, it seems. वो लोग भी खुदा परस्त इंसान लोग थे। The master is devout, आका बहुत दीनदार था and the soldiers, they are also devout. और उनकी फौज जो है, उनके जवान जो हैं वो भी दीनदार लोग बन चुके हैं। Abraham is a man of faith and prayer, अब्राहम बहुत ही ईमानदार और दुआ करने वाला इंसान था and his servant Eliezer also is a man of faith and prayer. और उसका खादिम एलिएजर जो है वो भी ईमानदार और दुआ करने वाला इंसान था। Now the Lord is honoring the faith of Eliezer, अब खुदा क्या कर रहा है? अब एलियाजर का ईमान जो है उसे खुदा उसको लेकर बरकत दे रहा है and also the Lord is answering his prayer. और उसकी दुआ का जवाब भी दे रहा है। And what is the answer? और उसका जवाब क्या आया? What is the result? उसका अंजाम क्या निकला? There, Rebecca was coming. वहां पे सीधा रिबका खुद आने लगी है। Rebecca is a young girl. रिबका तो बहुत कम सिन लड़की थी How will she walk? और वो कैसे चलेगी? She won't walk slowly like this. एक बूढ़े जैसे तो चलेगी नहीं ना, She'll be very brisk in her walking. बहुत लचकते कूदते चलेगी। At one point of time, she started running also. हाँ, एक बार क्या किया था उसने? दौड़ने लगी है। That's what we read today. और यहाँ वही पढ़ रहे हैं। So when Abraham saw the answer to his prayer, और जब एलिएजर ने अपनी दुआ का जवाब देखा and when she saw this damsel, और जब उसने इस कमसिन लड़की को देखा and he saw the bride for his master's son, और अपने आका के बेटे के लिए इस दुल्हन को आते हुए देखा, what is the attitude of Eliezer? तो एलिएजर ने क्या किया था? As we read today, तो आज जैसे हमने पढ़ा है verse 17, आयत नंबर 17, Genesis 24 and verse 17. पैदाइश की किताब 24 की 17। The servant ran to meet her. तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा। Right away, he did not call her, oh damsel, come here. हाँ, वहीं बैठे हुए उसने उस लड़की को बुलाया नहीं अपने पास। What is he doing? उसने क्या किया? He is running. उसने दौड़ा। Why? क्यों? If he doesn't run, अगर वो दौड़ता नहीं है, believe Eliezer was quite elderly, much older than Rebecca. हमें तो पता है ना कि एलिएजर जो है वो रेबका से भी और उम्र रसीदा इंसान था। So Rebecca would have passed off. तो रेबका क्या करती थी? वो शायद दौड़ते दौड़ते उसे पार करके चली भी जाती थी। And he did not want to lose that opportunity. और एलिएजर जो है वो नहीं चाहता था कि उस मौके को हाथ से गवाए। He did not want to miss this Rebecca. और वो नहीं चाहता था कि इस रिबका को जाने दे। So what is he doing? इसीलिए वो क्या करता है? He is running. वो दौड़ कर जाता है। So this means it is a run, redeeming the time, not wasting the time. तो ये दौड़ किस तरह का दौड़ है? वो अपने वक्त को बरकरार रखने के लिए या उसे इस्तेमाल करने के लिए वो दौड़ रहा है, वक्त को बर्बाद करने के लिए नहीं। If he had not run, अगर वो दौड़ता नहीं, Rebecca would have walked quickly and passed away. रिबका आती और सीधा जल्दी चली भी जाती। So you don't miss that opportunity. तो उसके हाथ से वो मौका निकल भी जाता था। So it is a run, redeeming the time. इसीलिए ये दौड़ किस तरह का दौड़ है? ये वक्त को अंजाम लाने वाला दौड़ है। How much of time you are wasting in this world? आजकल दुनिया में हम कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। How much of time we are saving and redeeming in our lives? हमारी जिंदगियों में कितना वक्त हम बचाते हैं और अपनाते हैं। Apostle Paul writing to the believers in Ephesus, एफिसियों की किताब में पौलुस रसूल लिखते हैं, turn to Ephesians chapter 4 and chapter 5. एफिसियों की किताब बाब नंबर 4 और बाब नंबर 5 देखेंगे। There Apostle Paul is mentioning about a five-fold walk of a believer. वहां पे पौलुस रसूल एक यीशु मोमिन के चाल चलन के बारे में 5 बातें कहते हैं। And in chapter 5, और बाब नंबर 5 में in verse 15 and 16, 15 और 16वीं आयतों में we are writing about the fifth walk of a believer. एक यीशु मोमिन का 5वां चाल चलन के बारे में कहते हैं। Other walks we find in chapter 4 and chapter 5. बाकी तरह के चाल चलन जो हैं वो आयत नंबर 4 आयत नंबर 5 में देखते हैं। After you go home, read these 2 chapters carefully. घर जाने के बाद ये 2 अबवाब आप मिलकर पढ़ें। You may see a mention of all these 4-5 walks. इनको मिलाकर पढ़ें और ये 4 तरीके जो हैं चाल चलन के वो आप ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। To just mention, we find the first walk
in chapter 4 and verse 1. और मसलन बताने के लिए, मुख्तसरन बताने के लिए पहला चाल चलन जो है वो इफिसियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 1 में The पढ़ते हैं, second walk in verse 17. और दूसरा चाल चलन जो है वो आयत नंबर 17 में पढ़ते हैं, And the third walk we read in chapter 5 and verse 1. और तीसरा चाल चलन जो है बाब नंबर 5 और आयत नंबर 1 में पढ़ते हैं, Fourth walk in verse 8. और चौथा चाल चलन जो है वो आयत नंबर 8 में पढ़ते हैं, And the fifth walk in verse 15. और पांचवा चाल चलन जो है वो आयत नंबर 15 में पढ़ते See हैं। what Paul says here. यहाँ पे पौलुस रसूल क्या करते See हैं? then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16. Redeeming the time, because the days are evil. वो कहते हैं बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की हाँ। मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। How should we walk? हमें किस तरह चलना है? Walk carefully बहुत एहतियात से चलना, and redeeming the time. और वक्त को गनीमत जानते हुए चलना। We should not waste our time. हमारे वक्त को हमें बर्बाद नहीं करना Now that चाहिए। is what Eliezer was doing. एलियाह सही यही कर रहा है। How much of time we are wasting in our lives. हमारी जिंदगियों में हम कितना ही वक्त बर्बाद कर लेते Our Lord हैं। is coming very soon, dear हमारे beloved. प्यारे अजीजों, हमारे खुदावंद यीशुआ तो बहुत जल्दी आ रहे That is हैं। on one side. That is on one side. हमारे खुदावंद यीशुआ की आमद एक तरफ है, One side, the Lord is coming very soon. मतलब खुदावंद यीशुआ तो बहुत जल्दी आ रहे On the हैं, other side, और दूसरी there तरफ is so much to be done before He comes. खुदावंद यीशुआ के आने से पहले बहुत कुछ करने के लिए अभी बाकी है। Many souls are perishing in this world. बहुत जाने रूहें इस दुनिया में फना हलाक हो रही हैं, And the time is very short now. और अब वक्त बहुत कम बचा है। So what we should do, इसीलिए हमें क्या करना we है? should consider time as very precious. हमें वक्त को गनीमत जानना चाहिए। We must spend our time in only those things which are absolutely necessary. हमारा वक्त सिर्फ और सिर्फ उन बातों में, चीजों में ही बिताना चाहिए जो चीजें या बातें बेहद जरूरी होती हैं। What will be useful for our spiritual life. हमारी रूहानी जिंदगी के लिए जो भी फायदेमंद की होती हैं, उन चीजों में, बातों में हमारा वक्त बिताना चाहिए। We cannot be wasting our time in all the other things. बाकी चीजों में वक्त लगाकर वक्त को बर्बाद नहीं करना Now, चाहिए। when Abraham came to Haran, और अब देखते हैं कि जब अब्राहम हारान में आया, it says that Haran was quite an attractive place. हम देखते हैं कि हारान जो है वो बहुत खूबसूरत जगह होती है। But what did Eliezer do? लेकिन What did Eliezer do? लेकिन एलिएजर क्या करता He है? did not go for sightseeing. वो एलिएजर जब हारान को आता है तो वो जगह देखने के लिए वो नहीं जाता। He was determined. वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ते He रहता does है, not have much time. क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। He must find the bride for Isaac. इसखा के लिए बहुत जल्दी एक दुल्हन को ढूंढ निकालना है, He must convince that bride. और उस दुल्हन से बातें करके उसको अपने साथ ले जाना है, Tell the purpose of his coming to the household of that bride. और उस दुल्हन के घर वालों के पास भी जाकर अपने आने का मकसद उनको समझाना है। Convince them and take the bride away. इतना ही नहीं बल्कि उस लड़की से बातें करके उसका मन सीधा करके उसको ले जाना है। Now the beginning of this project has come. अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुका है। So what will he do? तो अब उसे क्या करना है? He realized so many things are there. उसे पता चल गया कि अभी बहुत सारी बातें मुझे करनी है, And he was determined not to miss this God's plan and God's will in this damsel. इसीलिए उसने सोचा कि खुदा की मर्जी अगर इस छोटी लड़की के बारे में है तो इस लड़की के बारे में खुदा की मर्जी में मेरे हाथों से गवाह नहीं रहूंगा। And so what is he doing? उसने क्या किया? He ran to meet her. उसने जल्दबाजी करके उससे मिलने के लिए दौड़ के चला गया। It is a redeeming time. वक्त को गनीमत जानकर वक्त बचाने का दौड़ है। Is our run like that? क्या हमारा भी दौड़ ऐसा ही है? Otherwise, अगर ऐसा नहीं है, we cannot say I did not run in vain like Paul. हम भी पौलुस रसूल की तरह मैं वक्त को जाया नहीं किया, वक्त को इस्तेमाल किया करके बोल नहीं सकते। Now secondly, दूसरी बात, we read about another run. हम दूसरे दौड़ के बारे में And देखते we हैं, read that
in the life of Rebecca herself. हम रिबका की जिंदगी में ये बात हम देखते हैं। And what do we read there? वहां पे क्या देखते Rebecca हैं? also ran. रिबका भी दौड़ने लगी। We read that in verses 19 and verse 20, 19वीं और 20वीं आयत में हम ये बातें पढ़ते and हैं also in verse 28. और आयत नंबर 28 में है, 28 में भी हम पढ़ते हैं। Verse 19, अम, verse 19, 19वीं आयत, we read that she is agreeing to give drink and brought water for all the camels. यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की मान लेती है कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी। We are not reading all the other verses that are required जो हमें जरूरी है वो सारी आयतें भी हम अब पढ़ने वाले नहीं because हैं, we know this portion. क्योंकि हमें ये वाकया जो है हम जानते हैं। When Eliezer asked her for water, जब एलिएजर ने उससे पानी मांगा, what did Rebecca say? रिबका क्या कहती है? I will not only give you वो water, कहती है कि मैं तुझे पानी दूंगी, इतना ही I will नहीं, give for the camels also. लेकिन जो ऊंट तेरे साथ हैं उनको भी मैं पानी पिलाऊंगी। How much? कितना पानी? Not little, little. थोड़ा थोड़ा नहीं, Until they have done drinking, I will give water to them. मैं इतना पानी भर भर के दूंगी कि जितना पानी ये ऊंटे पिएंगे And- उतना दूंगी। And let us not forget, there were 9 other men also with them. और नहीं भूलेंगे ये बात कि एलिएजर के साथ और 9 मर्द भी शामिल थे। They also need water to quench their thirst. उनका भी प्यास बुझाने के लिए उनको भी पानी की जरूरत थी। So what is Rebecca doing? तो रिबका क्या करती है? Quenching the thirst of 10 people. यहाँ पे 10 लोगों का प्यास बुझाती है। That may require 1 or 2 pitchers of water. मतलब शायद 1 या 2 घड़े पानी लाना पड़ेगा। And that does not stop there. और वहां तो वो बात रुक जाती नहीं है। 10 camels are there. वहां उसके बाद 10 ऊंट हैं। And it is told by the Bible scholars, each camel will take a minimum of 10 to 12 gallons of water. और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि एक ऊंट जो है तकरीबन 10 to Or 12 गैलन्स पानी पीता है। If it is a long distance they walk or travel, अगर ऊंट बहुत लंबा सफर करके आता है, they will consume up to 15 to 20 gallons. 15 से लेकर 20 गैलन्स का पानी वो पीने लगता Let है। us put it as just 15 gallons of water. हम तो कम करके 15 पे लगा देंगे And we take one pitcher as 1 gallon. और एक घड़े को 1 गैलन करके सोच लेंगे। Those days no motor was there. उन दिनों में मोटर स्टार्ट करने के लिए मोटर नहीं था। So what Rebecca must do? तो रिबका को क्या करना पड़ता है? And these wells during those days they were very deep. और उन दिनों के कुएं जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। If you go to some remote villages even today, आज भी अगर आप कहीं देहात में जाएंगे you'll find such wells. वहां आप इस तरह के कुएं देखेंगे। They will have winding steps through which they go down and bring the water up. उनमें इस तरह की सीढ़ियां आपको मिलेंगी कि फिर के नीचे उतर के पानी ले आना पड़ेगा। Supposing we take it as only 15 gallons per camel, अगर आप सोचेंगे कि हम एक ऊंट के लिए 15 घड़े पानी सोचेंगे, how many gallons of water? कितने घड़े निकालना पड़ता है? 150 gallons. 150 घड़े उसे नीचे जाके ऊपर लाना पड़ता है। 150 times she must go down and come up. 150 बार उसे नीचे जाके ऊपर जाके नीचे जाके ऐसा जाना पड़ता That है। is why the word of God says here, इसीलिए यहाँ खुदा का कलाम कहता है verse 20, आयत नंबर 20 में, and she hasted and emptied her pitcher into the trough and ran again unto the well. और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई। पैदल में नहीं गया। पैदल मतलब पैदल धीरे धीरे चलते नहीं गई। नहीं, she started running. वो दौड़ के गई। Now what is this run? ये दौड़ क्या है? This run first of all speaks about sacrifice. ये दौड़ जो है ये कुर्बानी के बारे में पहला बताता है। Unless she sacrificed, she could not have run up and down so many times. अगर ऐसा काम करने के लिए वो तैयार नहीं होती, कुर्बान नहीं करती, तो वो इस तरह ऊपर नीचे 150 बार दौड़ने के लिए कबूल नहीं करती। And for that sacrifice, willingness also is required. और इस कुर्बानी में राजी जो है वो भी शामिल है। And also thirdly, तीसरी बात, she was
concerned about those camels. तीसरी बात यह है कि उन ऊंटों के बारे में भी वो फिक्रमंद रही। Otherwise, she could have said, नहीं तो वो कह सकती थी ना, I will give only for water for you and the other 9 people, मैं आपको पानी पिलाऊंगी और बाकी 9 लोग जो हैं उनको भी थोड़ा पानी पिला दूंगी, and then I will go off. तो उसके बाद में चले जाऊंगी। She was not like that. वो इस तरह की लड़की नहीं थी। She had an attitude of hospitality also. उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी जो है वो भी शामिल था। In the book of Proverbs we read, मेहमान नवाजी जो बोलते हैं, in the book of Proverbs we read, अमसाल की किताब में हम पढ़ते हैं chapter 12 बाब नंबर 12 and verse 10, आयत नंबर 10, the righteous man is kind towards his beast also. सादिक अपने चौपाई की जान का ख्याल रखता है। That is what was found in Rebecca. रिबका में ये बात नजर आती है। And how did she do that? और वो ये इस तरह कैसे करती है? Not grudgingly. बुड़बुड़ाते नहीं। In Hyderabadi language, हैदराबादी भाषा में बोलना है, जुबान में, ये किधर से आया है? ये कहाँ से आ टपका? How many gallons of water I must give now? हाँ, इतना पानी इसको पिलाना पड़ेगा भी। No, she never had that attitude. इस तरह का रवैया उसमें नहीं था। She looked at the camels. वो ऊंटों पर नजर की। They have traveled a long distance. बहुत सफर करके ऊंटे यहाँ आए। They cannot speak. और ये ऊंटे बोल नहीं सकते हैं। Eliezer could speak. एलीएजर तो बात कर सकता है। They could not speak. लेकिन वो ऊंटे बातें नहीं कर सकते हैं। She realized. वो बात वो समझ गई। She was kind. और वो रहमदिल लड़की थी। Therefore she went on quenching their thirst one after the other. इसीलिए वो बाहर जाके एक ऊंट के बाद एक ऊंट को पानी पिलाकर उनका पूरा प्यास बुझाया। What I feel is, और मैं अब समझता हूँ, only the camels had a mouth to speak. अगर उन ऊंटों को अगर बोलने की जुबान खोलकर बोलने का वो काबिलियत होती, like that ass which opened its mouth and spoke to Balaam, जैसे कि बालाम के वक्त में वो गधा अपना मुंह खोल के बातें किया था ना, what would the camels have done? अब ऐसी काबिलियत होती तो ये ऊंट क्या कहते? What they should have expressed with their mouth? अपने मुंह खोलकर वो क्या इजहार करते? Thank you, thank you, शुक्रिया, thank you. शुक्रिया। Every gallon of water she would give, they'll say thank you, thank you. हर एक घड़ा पानी जो वो देते जाएगी, हाँ, शुक्रिया शुक्रिया करके ऊंटे पीते जाएंगे। And the word of God says here, और खुदा का कलाम यहाँ फरमाता है, they had all done or finished drinking. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये सब के सब ऊंटे जो हैं पी कर खत्म कर दिए। I think they would all stood in a line. मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक लाइन में कतार में आ गए होंगे। They would have bowed down. और नीचे झुके होंगे। Thank you. शुक्रिया। Thank you. शुक्रिया। Why? क्यों? Because of the kindness, hospitality, and care and concern that Rebecca had. क्योंकि वो मेहमान नवाजी, वो नरम दिली और वो रहमत जो रिबका ने उन पर दिखाई। This is what the run of Rebecca is showing unto us. ये है रिबका का दौड़ जो हमें सिखाता है। It was a run of love. इसमें प्यार शामिल है। It was a run of sacrifice. इसमें कुर्बानी शामिल है। It was a run of willingness. इसमें राजी होना शामिल है। It was a run of hospitality. और इसमें मेहमान नवाजी भी शामिल है। Similar thing we find in John's Gospel chapter 2. और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 2 में हम यही पढ़ते हैं। We read about the miracle that took place in Cana of Galilee. वहां पे हम पढ़ते हैं कि गलीली के काना शहर में जो मुआजिजा खुदावंद यीशु ने किया वो पढ़ते हैं। Those servants also had the same attitude. वहां पे जो खादिम नौकर थे उनका रवैया भी ऐसा ही कुछ था। The Lord told them, खुदावंद यीशु ने उनसे कहा, fill the water pots with water. वहां पे जो घड़े हैं, पत्थर के घड़े हैं, उनको लबरेज कर देना पानी से। The Lord did not say how much to fill. और खुदावंद यीशु ने ये नहीं कहा कि कितना भरना है। What did the servants do? हाँ, खुदावंद यीशु ने लबरेज करने के लिए नहीं कहा, लेकिन खादिमों ने क्या How किया? much did they fill? कितना भर दिए वो खादिम लोग? They were not कामचोर. हाँ, वो लोग कामचोर नहीं थे। What did they do? उन्होंने क्या किया? Filled them up to the brim. उन लोगों ने लबरेज करके उसे भर दिया। Why? क्यों? Because they saw so many of them waiting for this wine. क्योंकि वहां पे उन खादिमों ने बहुत सारे मेहमानों को देखा जो लोग वो शीर पीने के लिए खड़े थे। So they filled them up to the brim. इसीलिए
उन गढ़ों को उन्होंने लबरेज कर दिया। How is our attitude today? तो हमारा रवैया आज कैसा है? How is our sacrifice? हमारी कुर्बानी आज क्या है? How is our concern for others? दूसरों के बारे में हमारा ख्याल सोच कैसा है? And this is what we learn from Rebecca's run. रिबका के दौड़ से हम इन बातों को सीखते हैं। And then when we go further down, और अगर हम और नीचे जाएंगे in verse 28, आयत नंबर 28 में, Genesis chapter 24 and verse 28, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब, बाब नंबर 24 आयत नंबर 28, we read that she ran again. वहां पढ़ते हैं कि वो फिर से और एक बार दौड़ने लगी। Where is she running? कहाँ दौड़ रही This है अब? time she is running to her house. अब इस बार वो लड़की अपने घर के तरफ दौड़ने लगी। She is running to her mother's house. अपने माँ के घर के लिए दौड़ने लगी। Why? क्यों? She had a purpose in this run. क्योंकि उसके दौड़ में एक मकसद है। She ran with joy. वो खुशी से दौड़ने लगी। She ran to give a testimony about this man. और इस इंसान के बारे में एक गवाही देने के लिए दौड़ने लगी। She gave a witness about this man. और इस इंसान के बारे में एक शहादत बयान करने के लिए दौड़ने लगी। And also told or showed whatever this man gave to her. और जो कुछ इस इंसान ने उसे दिया है या बताया है या बख्शा है, दिखाने के लिए, बताने के लिए दौड़ने लगी। Because she got 2 bracelets for her hands. क्योंकि कंगन दे दिए थे उन्होंने दोनों हथेली हाथों को। And then she also received an earring. और उसके बाद झुमके भी दिए। They all have spiritual meanings. इन सभी बातों के लिए उनके पीछे एक रूहानी मतलब होते हैं। We don't have time to meditate on them. उन सबों के बारे में समझने का वक्त अभी नहीं है। So Rebecca ran to convey and to tell all these things to her house. तो इसीलिए रिबका दौड़ने लगी ये सारी बातें अपने घर वालों को बताने के लिए। We don't read anything about her mother's attitude. और उसकी अम्मी जो है, माँ जो है, उसका रवैया कैसे रहा हम जानते नहीं। Or the others' attitude in the house. या घर में बाकी लोगों का रद्द अमल कैसा है हम जानते नहीं। But we read the response of Laban here. लेकिन यहाँ पे लाबान का रद्द अमल क्या है वो हम जानते हैं। So because of Rebecca's run of proclamation, और इस तरह रिबका दौड़ कर जाकर बयान करने के बाद what was the effect of that? उसका अंजाम क्या निकला? We read about the run of the third person here. यहाँ पे और एक इंसान के दौड़ के बारे में देखते हैं, तीसरे इंसान के। First of all, we saw about the run of Eliezer. पहले हम इलियाजर के दौड़ के बारे में देखते हैं। Run redeeming the time, not wasting the time. वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए, गनीमत जानते हुए दौड़ा। Then secondly, दूसरी बात, the run of Rebecca, रिबका का दौड़, which was of love, sacrifice, kindness and hospitality. उसके दौड़ में प्यार है और मेहमान नवाजी है, रहमत है। And then it was a run of proclamation and witnessing. और उसके बाद वो दौड़ती है बयान करने के लिए, गवाही देने के लिए। And now what is happening? और उसके बाद क्या होता We come है? to the third run. और यहाँ पे तीसरे दौड़ के बारे में समझते हैं। Who is running now? यहाँ पे तीसरा दौड़ कौन लगा रहा Laban है? is running. लाबान अब दौड़ रहा है। Where is he running? लाबान कहाँ दौड़ रहा है? Why is he running? क्यों वो दौड़ रहा है? Because he saw something upon Rebecca. क्योंकि रिबका में उसने कुछ देखा And he heard something from और Rebecca. रिबका से उसने कुछ जाना। That made Laban to run. और लाबान ये सारी बातें जानकर उसको भी दौड़ने का मन हुआ। 2 things are important. यहाँ पे 2 बातें खास याद रखना। He saw something. उसने कुछ देखा, He heard something. कुछ सुना। What are people seeing in us? लोग हमारे अंदर आज क्या देख रहे हैं? What are people hearing through us? हमारे जरिए से लोग क्या आज सुन रहे What हैं? are people observing in our lives? हमारी जिंदगियों में लोग क्या ढूंढ कर पाते हैं? Are they also running to Eliezer today? हम भी क्या इलेजर तक दौड़ने वाले हैं? Are people running to the Lord today? मतलब क्या लोग हमारे जरिए से खुदावन तक पहुंच रहे हैं? Are they running to the house of God with us? हमारे साथ खुदा के घर में वो लोग आ रहे हैं। What is our impact on others? हमारा असर दूसरों पर क्या है? This is the third run we see here. ये तीसरा दौड़ है जो हम यहाँ देखते हैं। Run of Laban. लाबान का दौड़, Responding
to what he saw and heard from Rebecca. रिबका ने जो बातें बताई, जो रिबका के साथ उसने देखा, उसके रद्द अमल में ये दौड़ रहा है। It was a run of conviction. ये अंदर कन्विक्शन होने के लिए, होने की वजह से, मतलब उसके अंदर मानकर, बात को जानकर मानकर वो दौड़ रहा है। It was a run out of constraint. वो बहुत जल्दबाजी करके, जल्दी करके वो दौड़ रहा है। Being compelled by Rebecca, he is running now. अब रेबका की गवाही सुनकर, उसको देखकर, उसको जाने का जल्दी हो रहा है। What a wonderful example Rebecca is. रिबका कितना अच्छा एक मिसाल बनकर रहती है ना। So by our life and testimony, हमारी जिंदगी को एक गवाही बनाना, by what people see in our lives, हमारी जिंदगी को देखकर लोग क्या जान रहे हैं, and by what they hear through us, हमसे लोग क्या सुन रहे हैं, by what they observe in our lives, और हमारी जिंदगियों में लोग जो भी देखते हैं, that must make them to come to the Lord and to his house and also to his word. ये सारी बातें लोगों को खुदावंद यीशुआ तक लानी चाहिए और खुदा के घर तक लानी चाहिए। So may the Lord give us the grace to have these three types of spiritual run in our lives. तो खुदा हमारी जिंदगियों में इस तीन तरह का दौड़ जो है हमारी जिंदगियों में खुदा दे। Run redeeming our time and not wasting our time. वक्त को गनीमत जानते हुए, बर्बाद ना करते हुए आगे दौड़ना। Secondly, दूसरी बात, like Rebecca, रिबका की तरह it may be a run of service, खुदावंद की खिदमत के लिए दौड़ना, run of sacrifice, कुर्बानी के साथ दौड़ना, run of concern, और मोहब्बत से दौड़ना, and it may be a run of hospitality like Rebecca. और रिबका की तरह मेहमान नवाजी का दौड़ना। And then thirdly, और तीसरी बात, run of Laban. लाबान का दौड़ जो है, He saw something, उसने कुछ देखा, he heard something उसने कुछ सुना, that made him to run. और वो बात उसे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। May our lives be such that people may see, hear and observe us and then come to the Lord. हमारी जिंदगी भी इस तरह की जिंदगी बने ताकि लोग हम में भी वो बातें देखें और हमसे भी वो बातें सुने और खुदावंद यीशुआ तक आए। So in the light of the word of God, तो खुदा के इस कलाम के नूर में let us also examine ourselves हम भी अपनी जिंदगियों को जांचेंगे, परखेंगे, whether we can compare ourselves to Eliezer, Rebecca and Laban. और ये बात देखेंगे कि क्या हम भी अपने आप को एलिएजर या रिबका या लाबान से, उनके मुकाबले में क्या हम भी ठहर सकते हैं क्या? If you are not up to that mark, अगर आप भी उस कद तक नहीं पहुंचे if you हैं, don't find these things that we have seen in these three people, अगर इन तीन लोगों में जो सिफत या क्वालिटीज आप देख रहे हैं उनके कद तक आप नहीं पहुंचे हैं, let's tell the Lord, तो खुदावन से आज ही ये बात कहें, Lord, make me like Eliezer, खुदावन मुझे एलियाजर की तरह बना देना, make me like Rebecca, मुझे रिबका की तरह बना देना, make me like Laban. मुझे लाबान की तरह बना देना। We also can say like Apostle Paul, ताकि हम भी पौलुस रसूल की तरह बता पाए, I have not run in vain. मेरी दौड़ जो है वो बातिल नहीं हुई। We all are running, हम सब दौड़ रहे हैं, but are we running properly? लेकिन हम सही ढंग से दौड़ रहे हैं क्या? Are we running in vain? या हम बातिल तरह की दौड़ धूप में शामिल हैं क्या? So let us examine ourselves तो हम अपने आप को जरा परखेंगे, जांचेंगे, and then take part in the Lord's table. और उसके बाद इस खुदा की मेज में हाथ डालेंगे। If you are defiled by anything during the past week, अगर गुजरा हुआ पूरा हफ्ता आपकी जिंदगी में कुछ मैल, कुछ गंदगी आ गई है, if you have failed the Lord anywhere, अगर किसी बात में खुदावंद को नाखुश आपने किया, if you have grieved the Lord anywhere, अगर खुदावंद यीशुआ के दिल को आपने दुखाया, you could not live up to his expectations, अगर उसकी चाहत के मुताबिक आप जी नहीं सके, let us ask the Lord's forgiveness. तो खुदावंद यीशुआ से मुआफी मांगना। Wherever cleansing is required, we'll ask his cleansing. जहां भी खुदावंद यीशुआ को हमें धोना है, खुदावंद यीशुआ से मांगे कि खुदावंद यीशुआ हमें धोएं। The blood of the Lord is still available for our cleansing. खुदावंद यीशुआ का खून जो है हमें धोने के लिए आज भी हमारे लिए दस्तयाब है, मौजूद है। And then let us take part worthily in his table. उसके बाद हम इस मेज में लायक तरीके से हाथ डालकर हिस्सा लें। Let us remain in prayer for a couple of minutes, चंद मिनट हम घुटने टेक कर दुआ में रहेंगे, and then we'll take part in the table. उसके बाद हम इस मेज में हाथ डालेंगे। May the Lord help us. खुदावंद हमारी मदद फरमाए।